السلام علیکم ویواس، ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس ناول یقین محبت کے ایپیسوڈ نمبر 22 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موبائل پر جگتے پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے کریڈل اٹھا گیا تھا۔ میرے آفس میں آئے؟ جی سر۔ سیکرٹری نوک کی اندر آئی اس بدلے شخص کو دیکھنے لگی۔ یہ سنجیدہ سا تھا، زندگی کے سانوں نے چند مہینوں میں سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ آج کی میٹنگ کا اسکیڈول موبائل پر جھکتے پوچھنے لگا۔ آج کا نہیں سر، لیکن پرسوں آپ کی ہوٹل مینجمنٹ کی ٹیم سے میٹنگ ہے۔ وہ فون سے اسکیڈول دیکھتے بولی تھی۔ بابا سے بات ہوئی تھی اس بارے میں؟ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے بولا۔ نہیں سر، سکندر سر پرسوں آنر سے ملے تھے، لیکن کوئی فائنل بات نہیں ہوئی تھی۔ اوکے، میں خود بات کرتا ہوں۔ ابھی آفس میں ہے وہ واچ پر ٹائم دیکھتے اٹھا۔ سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس کے سر میں درد سا رہتا تھا۔ وہ نوک کرتے ان کے آفس میں داخل ہوا۔ سکندر اور وحاج نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کو دیکھ کر دونوں مسکرائے تھے، جو اپنے کام میں سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ یہ ڈیل آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس ہوٹل کے آنر سے؟ آنر سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ بیچنا چاہتا ہے 2 پارٹیز اور ہے، ایک 60% خرید چکا ہے، جبکہ دوسری 20% انویسٹ کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں وہ باقی کا 40% سارا ہمیں مل جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض؟ سکندر نے اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب فائل پر جھکے ہی اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر ٹریول ایجنسی سے میری بات ہو گئی، تمہاری آج شام کی فلائٹ ہے۔ وہ اسے انفارم کرنے لگے۔ یہ تمہارا پہلا ایکسپیرینس ہے؟ ہوپ سو یو ول یوز یور ٹیکنیکس ان پروفیشنل لائف۔ وہ سنجیدہ سا ٹرانسپیرنٹ گلاسز آنکھوں پر لگائے گلاس ڈور دھکیلے باہر نکل گیا۔ گزشتہ 7 ماہ اس کی نظر کے سامنے تھے، جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ بڑی مما یہ بہت پیارے ہیں، وہ پرمسرت لہجے میں بولتے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہاتھ سے چھوتے اپنے لب رکھتے بولنے لگے۔ تمہیں اچھے لگے؟ اس کے بارے وجود کو دیکھتے بولی، جس کی ڈلیوری کے آخری دن تھے۔ یہ سب احان اور اذہان کے بچپن کے کپڑے ہیں، میں نے سارے سنبھال کر رکھے تھے۔ میں چاہتی ہوں اب جن کی اولاد پہنے۔ وہ اپنی حسرت ان کپڑوں کو دیکھتے بیان کر رہی تھی۔ اور آپ کی خواہش میری خواہش، وہ ہاتھ تھامتے مسکراتے سر ہلا گئی تھی۔ حالانکہ اس نے ڈھیر شاپنگ کی تھی، لیکن جس ثانیہ کی خواہش تھی وہ کیسے ٹال سکتی تھی؟ ثانیہ بیگم نے اسلام میں اس گھر میں آنے والی خوشیوں کی دائمی دعا مانگی، جو لمبے عرصے کے بعد ان کے گھر میں دستک دے رہی تھی۔ میں یہ سارے کپڑے وارڈروب میں سیٹ کرتی ہوں۔ وہ ڈھیر سارے چھوٹے اپنے بستر پہ طے شدہ کپڑے دیکھتے چہکی۔ آرام سے رہیا میری جان سنبھل کے۔ وہ خوشی میں تیزی سے بیٹھ سے اترتی کہ ثانیہ بیگم ٹوک گئی تھی۔ سوری بڑی مما۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کے ویسی بے وقوفی کر جاتی تھی۔ احان یہاں ہوتا تو اس کی کلاس پکی تھی۔ آپ پریشان ہیں؟ میں اب آرام سے قدم رکھوں گی۔ مگر جواب نہ دینے پر وہ سمجھ گئی وہ کس کو سوچ رہی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے قریب ان کو خاموش دیکھتے پیر سے نیچے ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گئی تھی۔ اذان کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ وہ نم آنکھیں جھکا گئی تھی۔ عریہ انہیں ساتھ لگا گئی تھی۔ عریہ، اس لڑکی نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ 7 ماہ گزر گئے، پھر بھی اس کا اثر ہماری زندگی میں ہے۔ میری بیٹی کی جان لینا چاہیے اس نے۔ عریہ فی الحال چپ رہی تھی۔ میں اب بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، تمہیں پریشان کر رہی ہوں؟ وہ نفی کر گئی تھی۔ ماں بیٹیوں سے دل کی بات کرتے ہیں، انہیں پریشان نہیں کرتی۔ سب صحیح ہو جائے گا، بس آپ زیادہ ٹینشن نہیں لیا کریں، کیونکہ آپ پریشان ہوتی ہیں تو سارا گھر پریشان ہوتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں سمجھاتے بعد میں بات کرنے کا فیصلہ چھوڑ چکی تھی۔ وہ چائے کا کپ تھامی اس کے روم میں آئی، جہاں وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ یہ کیوں یوز کر رہے ہو؟ سختی سے بولی تھی۔ مما پروجیکٹ ہے میرا، پہلے ہی سیمسٹر فیس تھا، مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا میں۔ وہ چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے تھام گیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا نا زیادہ لیپ ٹاپ اور فون یوز کرنے سے؟ وہ اس کا چہرہ چھوتے محبت سے بول رہی تھی۔ پریشان نہیں ہوا کریں، میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ نظریں ان کی جانب اٹھاتے نرمی سے بولا۔ خود کو کیوں سزا دیتے ہو؟ اس کا تھکا چہرہ دیکھتے بولی، جو خود کو یونیورسٹی کے بعد کام اس قدر مصروف رکھتا کہ انہیں اس پر غصہ آنے لگتا تھا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے چپ ہے، تمہارے ٹھیک ہونے تک یہ معاملہ تھا، مزید نہیں۔ وہ ان گزشتہ ماہ کی اذیت سوچتے کربناک ماحول سوچ رہی تھی، جہاں ان کا بیٹا پورا 3 ماہ بستر پر لگا رہا، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو تجاوز کرنے والا شخص زندگی میں کبھی سکون میں نہیں رہتا، خواہ وہ زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی سے کپڑے میں منہ دیے کپڑے سے الجھتے دیکھ وہ اس کے قریب آئی، جبکہ وہ انوز ہینگ 3-4 شرٹس بیڈ پر پھینکنے میں مصروف تھا۔ اف خدا، تمہارے بابا باز نہیں آئے تمہیں بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا آن کو بھیج دیں، وہ کچھ سمجھتے بولی۔ بھائی کیسے جا سکتے ہیں، ان کا سیٹرڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے بس، اور ویسے بھی ابھی بھی ریح کو بھائی کی ضرورت ہے ابھی۔ وہ بیگ میں کپڑے ٹھوسنے لگا۔
अज़हान मेरी जान, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, अभी मैं तुम्हें सफ़र नहीं करने दूंगी। पता नहीं तुम्हारे बाप को होटल खरीदने का क्या जुनून चढ़ा है। इस उम्र में बंदा कौन सा नमाज रोज़ा करे, वो कुर्ते बोली। उफ, मुझे पता होता इस हादसे के बाद पापा से भी ज़्यादा मुझसे मिसेज सिकंदर की मोहब्बत बढ़ जाएगी, तो कब से ये नए काम कर लेता। वो शरारत आमिज़ लहजे में बोला। कसूर नहीं बोला करो, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते माँ की मोहब्बत का कभी भी। मैं तो इसे भी अपना गई थी, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जाने उसे क्या तकलीफ थी। वो लब पींच गया था। मैं तुम्हें जाने नहीं दे रही, बस अपनी नज़रों से दूर, वो रुंधी आवाज़ में बोली थी। अम्मा यार, वो इन्हें अपने साथ लगा गया था। मुझे फ्रेश माहौल लेना है, वैसे भी एमबीए के बाद एक्सपीरियंस गेन करने को इंटर्नशिप लाजमी होती है, तो क्या वो मिसेज सिकंदर का शोर करवा रहा है, तो मैं इनका मूड बहाल करने को बोला था। नॉट फेयर, मेरे से कभी सारा फेयर इस कमीने को कर रही है। पीछे से कामशुदा हिस्सार पर वो दोनों मुड़े थे, जहाँ उससे आशिकन था शर्ट में। हफ्ते से दोनों की जानिब देख रहा था। अब आप थोड़ी जलन फील करें ताकि आपको अंदाज़ा हो बचपन से मेरे दुखों का। वो आँख को देखते माँ के साथ मज़े लगते जताते बोला था, जो ऑफिस से आने के बाद माँ से मिलने को ढूंढते यहाँ ही सीधा अजान के रूप में आ गया था। मैं तुम दोनों से बराबर की मोहब्बत करती हूँ, याद रखो इस बात को, हर एक की अहमियत अपनी जगह। वो दोनों को देखते नजर उतार गई थी। वह रूम में दाखिल हुआ। वो नींद में थी। खाने की ट्रे लिए वो इसकी तरफ बढ़ा। इसको आए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन उसकी नींद हाँ ने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा था। वो आधी से ज़्यादा रात करवट पर करवट लेकर गुजारती। उसकी तकलीफ उसे खुद में महसूस होती। रिहा ट्रे साइड पर की, उसके लंबे उलझे बालों में नरमी से हाथ फेरने लगा। इसके लम्स की पहचान थी कि वो आंखें वहाँ करते उसको देखते मुस्कुरा गई। 2 घंटे से वापस आया हूँ और तुम सो रही हो, इतनी नींद कहाँ से आती है यार। मुझे सहारा देते उठाते बोला। पता नहीं चलता मैं इतने कैसे सो जाती हूँ, आप उठा देते मुझे। वो उसके बाल खुद समेटने लगा था। वो मुस्कुरा उठी। नहीं, तुम रात में सही से सो नहीं पाती हो। अब इसके आगे हथेली फैलाई थी। आपको पता चल जाता है। वो हाथ थामते हैरा से पूछने लगी, क्योंकि जब तुम बार बार करवट लेती हो तो मैं भी जाग जाता हूँ। उसको बाथरूम तक ले जाते वो छोड़ चुका था और उसका वेट करने लगा। वो गीले चेहरे से चंद लम्हों बाद बाहर आई थी। जब वो बाहर इसका वेट कर रहा था, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो उसकी हर छोटी सी चीज़ में भी केयर करता था। मेरी गुड बुक्स में शामिल हो गए आप, वो खिलखिलाते बोली। नवाजिश। खान उसकी बात पर गौर के रह गया। मर्द अच्छे भी होते हैं, फिर औरत कैसे उन्हें अजियत दे सकती है। वो उसको देखते पूछने लगी थी। हज़ारों केस ऐसे भी होते हैं, हर जगह मर्द बराबर नहीं बुरा नहीं होता। मैंने वाला बनाते उसके होंठों के करीब ले गया। लेकिन मुझे वो मर्द भी जाहिल लगते हैं जो औरत को आराम से कह देते हैं कि तुम रह कर आखिर क्या करती हो, फारिग ही होती हो। ऐसा क्यों? एक सेकंड में उसके साथ को बेमौल कर देते हैं। वो उसका हाथ थामते पूछने लगी। अब हर एक का सिर्फ मुझे से थोड़ी है, जो अपने फारिग और सोती बीवी के नखरे बर्दाश्त करती, उसे खाना भी अपने हाथ से खिलाए। वो उसके आगे निवाला करते संजीदा सा बोला, क्योंकि हर एक की किस्मत में आपके जैसी नहीं जिसे रिहा रिहा मिले। वो निवाला लेती उसकी उंगली पर बाकायदा काटते याद दिला चुकी थी। जानता हूँ एक अदद नमूने मेरी ज़िंदगी में है, फिर याद दिलाना ज़रूरी है। वह दांत के वासे निशान अपनी उंगली पर गड़े देख हाथ पीछे करते बोला। और बेबी के बाबा तो गुस्सा हो गए। उसके गाल कहीं थे, मूछों तले गुलाबी लब और चेहरा देखे गई। वो अक्सर मबूज़दा हो जाती थी। इसके सामने कोई मजाक नहीं, इसके साथ कोई मजाक नहीं है। वो अपनी गाला करते तीखे लहजे में होश दिलाते बोला। हाँ, ये क्यूट है। वो उसकी बुरी शेप ज़्यादा गाल अब मुस्कुराहट दबाए देखने लगी। आई वॉन्ट। वो इसके करीब रहते गाल के करीब होंठ ले जाते रुकी। हाँ, लब दबाए था। आई वॉन्ट टू डू दिस अगेन। अब हौसले ज़्यादा जोर से खींच उसके गाल सुर्ख कर चुके थे। अरे हाँ। वो शरीर खौफज़दा सा पीछे हुआ। शोहर हो तुम्हारा कभी अपनी मम्मा या मेरी मम्मा को ऐसी बदतमीजियाँ अपने शोहरों के साथ करते देखा है? वो चिढ़ते तब किया था। इसकी यह हरकत इसे शदीद नागवार गुजरती थी, जबकि वो इसे मज़ीद चिढ़ाती थी। कहीं भी कभी भी। हाँ, तो मुझे भी की जान पर प्यार आ रहा है। अब इनको मेरे जैसा प्यार थोड़ी आता है। मैं तुम्हारी हालत का लिहाज कर रहा हूँ। ये बाल खींचना और ऐसी हरकतें, अनोखा ही तुम्हारा प्यार। उसे करीब पर देख वार्न करने लगा। मेरा पिंक चीक्स वाला बेबी। वो करीब होते फिर मज़ीद जोर से खींच चुकी थी। अभी बताता हूँ। उसके दोनों हाथ थामते अपनी नरम गिरफ्त में लेता पूरी तरह चिल्लाई थी। आन पेन। वो चेहरे के ज़ाविये मोड़ने लगी। रिहा उसकी गिरफ्त में बुरी तरह पेट पर हाथ रख के चलने लगी थी। आई एम सॉरी, मेरी गलती। उसके साथ चेकअप के सेशंस की डॉक्टर की प्रिकॉशंस उसके जहन में आने लगी। हान, मैं दर्द से मर जाऊंगी। वो एक आँख खोल उसके तासरात से मजे लेने लगी थी। तुम गहरे सांस लो, कुछ नहीं होगा। मम्मा कहाँ है? आप शिट में गाड़ी निकालता हूँ।
वो बौखलाते उठता मजीद हाइपर होता कि वो बाजू थाम गई थी। हाँ, ओ माय गॉड, वो दांत निकालने लगी थी। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। फखर खान नजर से उसको भारी शराफत देखने लगा। हाँ ना, आपको एक मजे की बात बताओ, मुझे नहीं सुननी, याद रखना। अगली दफा असल में भीतर से तड़पना तो मैं नहीं आने वाला। वो ट्रे साइड पर करने लगा। गलत। मैं हजार बार भी ऐसा करूंगी तो अब यहाँ सारे काम छोड़ते मेरे पास आ जाएगा। मैं तफाकुर से बोली। खाम ख्याली। मुस्कुराहट दबाए बोला। नहीं, यकीन मोहब्बत में उसके लहजे की मजबूती समेत अपने हाथ पर मजबूती से पलटा। वो मुस्कुराते चेहरे से उसको देख रही थी। अच्छा, अब एक मजे की बात तो सुने। बैठे तो सही में उसका मोड़ा कप खींचते क्या नीचे कलाई तक लाते उठ बैठी। मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी। सुबह का केस रीड करना है मुझे। वो हाथ चढ़ाते दूर हो गया था। पीछे वो कई लम्हे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लिए खिलखिलाती रही। बंदा एक मैसेज कर सकता है, मैं सो जाऊँ फिर। मैं डिनर पर वेट नहीं कर रही, खुद ही अकेले करना। मुझे बिल्कुल भी नींद में डिस्टर्ब नहीं करना। पहले सारा दिन कॉलेज में मेडिकल की टफ क्लासेस में सर खपाओ, फिर एक इल्म शोहर का वेट करो। वो सारे 2 घंटे पहले भेजे टेक्स्ट पढ़ते चाबी इग्निशन में लगा चुका था। अभी जैसे न्यूज़ देनी थी, इस पर इसका रिएक्शन भी देखना था। गाड़ी पोर्टेको में लॉक किए राहदारी से अंदर कदम बढ़ाता कि उसको लाउंज में जल्दी सारी लाइट और समेत सोफे पर बुक चेहरे पर गिराए। सर्दी की यख बस्ता रात में आड़ी तिरछी सोए देखा। शीट हाथ में थामी चाबी वहीं टेबल पर छोड़ते उसके चेहरे से बुक हटाई थी। वो गहरी नींद में थी, उसकी मौजूदगी का एहसास भी न कर सके। उसके वजूद को नरमी से बाजू में भरते अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाए थे। बिस्तर पर डालते ब्लैंकेट दुरुस्त किए, वो अपनी जैकेट उतारे, शूज उतारने लगा। शर्ट का फ्लिंक्स मोड़े वॉशरूम से निकलते हुए किचन की जानिब चलेंगे तक फ्रिज खोलनी चाहिए, जो ना खोलने पर लॉक का पता दे रही थी। वो नफी की स्लैब चेक करने लगा। सारी कैंबिट चेक करने के बाद ना महसूस अंदाज में कमरे में दोबारा कदम बढ़ाते कबर्ड खोलनी चाहिए, वो भी लॉक थी। जबकि उस पर चिट्ठियाँ नज़रों से टकराई। मैं नौकर नहीं हूँ, ना ही गर्लफ्रेंड हूँ। रिमेंबर दिस मिसेस गाजियानो। इसे एक रिटर्न टेक्स्ट नहीं आप सेंड कर सकते। स्लीप विद योर एम्प्टी स्टमक इन फॉर्मल ड्रेस। ओह, तुम बदला लोगी मुझसे। वो तिरछी नज़र बेड पर लेटे वजूद पर डाले, उसके साथ नींद दराज हुआ। वो नींद में बेखबर से थी, उसकी पूरी चंद पल देखता रहा। नींद में कुछ रेंगता महसूस किए, ना महसूस तरीके से वो हिलते रुख मोड़ गई थी। तुम भी नहीं सो सकती फिर? उसके चेहरे के पुरसकून नक्श देखते वो सरगोशी किए, उसकी खींची चेन का खोले पर रख गया। वो कसमसाते पुरसकून नकूश में बल ले आई। सोरे नूरे जान। उसको बाजू में भरे वॉशरूम का दरवाज़ा खोले, अपने कदमों पर खड़ा किए वो कमर के गिरते सार खींचे शावर खोल गया। यख बस्ता जमीन और ठंडा पानी उसे आवाज़ में लाया। वो हरासत से इसको और वॉशरूम को देखती चिल्लाती कि उसके चीखने के लिए खोलते नहीं वाला पथेली तले दबा गया था। वो तेजी से शावर के नीचे खड़ी सर्दी की रात के इस पहर भीगती उसकी शर्ट का सहारा लिए और खा नजर से अपने पागल जोर को चुंदियाई आंखों से देख रही थी। मैं हाथ हटा रहा हूँ, चीखना नहीं। उसके कानों में मुस्कुराते बोल उसे जहर लगा था। तुम्हें पता है तुम कितने बदतमीज हो? वो सुर्ख नजर से हाथ हटते ही सबसे पहले चीखी थी। ये सजा थी कपड़ लॉक करने की। खाने तक ठीक था। वो उसके भीगते बाल पानी से आजाद करने लगा, जबकि उसके कमर की सख्त मजबूती की वजह से छुड़ाने की मुज़ाहमत किए वो बजते दांतों से लबरबस किए रह गई थी। ऐसा कोई करता है? शावर से निकलते ठंडे पानी की जगह नीम गर्म पानी से अब सुकून देने लगा। वो उसे अपने साथ मुकम्मल भिगा चुका था। अगर तुम ना भीगती तो तुमने कपड़े नहीं खोले थे। उसकी गर्दन से चिपके बाल हटाते हुए अपनी शेव सदा गाल उसके नम चेहरे से रगड़ने लगा। नूर कसमस आने लगी थी। लीव मी, मुझे टच नहीं करना। उसके बराबर होते उसका चेहरा नोचती कि वो ऊंचा होते उसकी पहुंच से दूर हुआ। उसकी कच्ची नींद से जागने और पानी की कतरों से गीला चेहरा उसके दिल को मजीद इस्तेहकाक देते उसको सुर्ख नजरों का मुंतजिर था। वेरी फनी बेबी, तुम इस वक्त मेरी रहमो करम पर हो। छोटी हो मुझसे काफ़ी हाइट में, वो कहकर लगाते मजीद ऊंचा हो गया। नूर तेजी से अपनी बेबसी पर रोने लगी थी। इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उल्टा उसे सजा दे गया था। अच्छा सुनो तो यार। मैं शावर बंद करते उसको खुद ही में पीछे ढक के वो अपने जहरीले नाखूनों से उसकी गर्दन को नोच चुकी थी। मुझे रत्ती बराबर तुम पर यकीन नहीं है। तो हमेशा वाला जुमला बराबर कराते रुंधे लहजे में बोलते। वॉशरूम से निकलते से पहले वो झटके से उसे खींचते वॉशरूम की दीवार से लगाते बाएं हाथ टिका गया था। मुसलसल नाक मुंह रगड़ते उसकी भीगी स्किन की शर्ट के ऊपरी 2 खुले बटन से झांकते सीने पर नजरें गाड़े उसका चेहरा और गर्दन नोच देना चाहती थी।
नोच लो तुम्हारा ही हूँ। वो अपने चेहरा उसके करीब ले जाते माँ-बाप से लहजे में बोले। उसकी भीगी सिल्वर सदा पेशानी चूम गया। उसके साथ से अपने चेहरे पर ना महसूस की। वो बंद आंखें खोल लॉक और दरवाजे से खोल गई जहाँ वो नहीं था, पर दरवाजा लॉक था। आजियान दरवाजा खोला। वो बुरी तरह दरवाजा पीटते उसकी चालाकी पर चीख रही थी, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? रहो अंदर। वो बाहर से आंका था, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। आधी रात कोई सर्दी में से बेरहम सलूक करता है, अब बदले में यकीन नहीं मिलता। सुबह अगर मैं मर गई तो आपको फांसी के तख्त तक जरूर पहुंचाऊंगी। वो कांपते वजूद से बोली। जरूर, मगर इसके लिए तुम्हारा जिंदा होना जरूरी है। लिहाजा मुझे अब बताओ, कबर्ड की चाबी कहाँ है? वो दरवाजे के साथ लगे। अपनी बचकाना हरकतों पर वो मुश्किल मुस्कुराहट रोके था। मैं नहीं बता रही। वो आते लहजे में भीगी सी सर्दी से ठठरते भी जिद में थी। फाइन, रहो फिर। वो उसकी आवाज़ से अपना ही महसूस कर रही थी। वो पैर पटक गई थी। खामोशी का दौरानिया महज 5 मिनट का था। मैट्रेस के नीचे है। उसकी चिंचिलाई आवाज़ पर, उसकी शेप ज़दा गाल पर मुस्कुराहट की छाप आई थी। अपने कपड़े चेंज करने के बाद दरवाज़ा खोल गया। नूर जिंदा हो। वॉशरूम में झांकते कि उस पर चपड़ चुकी थी और जालिम उसकी गर्दन नोचते। वो खूंखार बिल्ली बनी थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी आज। वो बामुश्किल उसके नुकीले नाखूनों से बचते पीछे ज़मीन पर गिरता कि बामुश्किल कदम गीले फिसलते फर्श पर जमाए थे। मैं और भीगी सी तुम, उफ। सर्दी की रात सोचो नूर। वो सर तपाउन देखते से सुलगा गया था। तुम्हें फिलहाल ज़रूरत है। उसकी जानिब खतरनाक तेवर लेबर दे के बोल उठा, चेंज की। वो मुस्कुराहट दबाए रूम से निकल गया। नूर जब्त किए धुआं उड़ता वजूद कबर्ड के करीब लाई थी। सफ़ेद नरम सी मोटी फुल स्लीव वाली शर्ट और ट्राउज़र पहने भी वो बिस्तर में सुकून महसूस नहीं कर रही थी। कंफर्टर लपेटे वो बिस्तर में दुबक सी गई थी। वो रूम में कॉफ़ी के साथ पड़ा। कॉफ़ी? वो अपने कप से घूंट भरते उसका कप उसे थमा गया था। नहीं चाहिए मुझे। वो नींद खराब होने पर आंसू जब्त किए चीखी। वो शर्ट के बाजू में हाथ छुपाए सर्दी से कांपते उसे मुसलसल अपनी जानिब मुतवज्जह कर रही थी। फाइन, ना लो। हम मज़े से सिप लेने लगा। नूर उसकी बेमुरब्बती की इंतहा देखने लगी, जो दोनों कपों से एक एक सिप मज़े से क्राउन से टेक लगाए ले रहा था। तुम? वो बोलने के लिए लब खोल दी, कुछ जुमला अचक गया। तुम एक कमरे में बंद हो। और वो आंखें मारते बोला, मेरी नींद खराब करते वाहियात गाने सूझ रहे हैं। वो चंद पल देखने के बाद मजीद बोलने की हिम्मत ना करते ताकि मैं चेहरा छुपाए रोने लगी थी। हाला गाज़ियन बौखला गया था। ये लड़की इसका मजाक तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसकी हिचकियों में एतबार से कप साइड पर रखते ऊंधे मुंह पड़े वजूद को सीधे किए उसका हाथ जबरदस्ती आंखों से हटाते उसकी सुर्ख आंखें देखने लगा। आई एम सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था। उसके रोते वजूद को सीधा किए बोला था। ना, तुम ऐसे ही करते हो। मुझे सर्दी में भी खा दिया। आधी रात मेरी नींद खराब की। खुद कॉफ़ी भी मज़े से पी रहे हो। इसके हाथ उठाए पीछे होने लगी थी। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। याद है तुम्हें? तुम खबर लॉक कर गई, फ्रिज लॉक कर गई। मेरा मतलब बर्दाश्त नहीं, बीवी को वेट करना चाहिए ना। वो उसने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा था जिसके हिसाब से निकलती जा रही थी। नहीं, तुम बुरे हो। मुझे बाबू के घर जाना है राइट नाउ। उसके बाद में मजीद भड़कते बोली, सर्दी की रात में सरताज को छोड़ते बाबा के पास कौन जाता है? और मेरे पास तो है भी एक बीवी। वो उसके कान की लू चूमने लगा। क्या मतलब? कितनी चाहिए थी? वो पूरे बिस्तर पर सीधी हो गई थी। ऐसी बातें बहुत जल्दी सुन जाती हैं। उसके लम से ढीली पड़ने लगी। मैं सिर्फ खास लोगों के लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। उठ जाओ अब। उसका नम बाल परे हटाए वो मोहब्बत से चूर लहजे में उसे उठाते अपने हिसार में लेते बोला, हीटर ना होने की वजह से मज़ीद सर्दी महसूस किए गरमाइश हासिल करने के लिए सारे शिकवे हटाए घूंट उसके हिसार में भरने लगी थी। तुमने मेरी गर्दन पर बहुत जुल्म किया। मैं जलन महसूस की। उसके तराशीदा खस्ता लंबे नाखून अपने हाथ में थामते देखने लगा। आप इससे भी बुरे डिजर्व करते थे। वो कप साइड पर रखते गुस्सा उतारने पर उसकी गिरफ्त में कसमस आने लगी। सर्दी लग रही है। उसके सुर्ख नाक देखते वो बात बदल गया। उसके नज़दीक होते अपने ठंडे पड़ते हाथ उसके चेहरे और गर्दन पर लगाते अपनी सर्दी का एहसास दिलाने लगी थी। वो उसके हाथ थामे लब दबाए देखने लगा। नो, मैं अब पक्का हॉस्टल शिफ्ट हो रही हूँ। नज़रों का मफहूम समझे सुर्ख से ब्लैंकेट में छुप गई थी। नए शहर की आबोहवा उसके वजूद से टकराते मुझे सर्दी का एहसास दिला गई थी। होटल रूम में भी इस लम्हे सर्दी सी महसूस होने लगी थी। कुछ लम्हे पहले चलाई गया हीटर से अब रूम टेम्परेचर बैलेंस होने लगा था। ग्लास वाल से चंद पल वो नीचे देखते मंजर देखने लगा। बिलाशबा इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर था। ऑनर से मुलाकात उसकी शाम में थी, जहाँ डील साइन करने के साथ नेक्स्ट काम पर प्रेजेंटेशन भी थी।
सानिया बेगम को अपने पहुंचने की इत्तला करने के बाद फिलहाल रेस्ट करने का इरादा था। नरम बिस्तर पर गिरते ही बगैर रूम सर्विस लिए बगैर फ्रेश हुए ही नींद की वादियों में खो गया। अच्छा अभी क्या कर रही हो? पढ़ने की कोशिश। वो लैपटॉप और बुक खोले बैठी थी। क्या तुम्हें फ्लू हुआ है या मोहब्बत की शुरू किया है? और रात की हरकत पर उड़ गई, बुक बंद करते अब बिल्कुल लैपटॉप की जानिब स्काइप पर चलती कॉल पर मुतवज्जो हो गई थी। कहाँ खो गई हो? आयरिस का एक्सप्रेशन देखते हंसते बोली थी। ये 7 माह पहले वाली नूर की जगह उसकी मोहब्बतों की संगत में रहने वाली खासी पतली हाला नूर उसके सामने थी। वो इसलिए में भी ब्लू शर्ट और स्वेट ट्राउजर में कंधे तक आते से हवाले में ग्रे शाल में लिपटी बिल्कुल सादा सी गले में सिंगल सी चेन पहनी थी, जिसका डिज़ाइन न दिखने के बाद भी वो अच्छे से जानती थी जिसकी शर्ट के बंद गले में छुपा सा था। यार मेरी बीवी की जान छोड़ भी दिया करो, कभी तुम्हें कोई काम वाम नहीं ऑफिस में? इसलिए मैं वो सर्दी में भी पसीने से भीगी शर्ट में था। लैपटॉप के आगे कब आया वो अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी, क्योंकि पिछले 1 घंटे से इस बंदे की एक्सरसाइज नहीं ख़त्म हो रही थी। काम है ना, पर अभी फ्री थी और वैसे भी ये सारा टाइम तुम्हारे पास ही होती है। आयरन ने इसकी बात बना के सुखेड़ते कहा। खाक, कॉलेज की बात बुक्स के साथ होती है फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और उसके तंज को बखूबी समझ गई थी, पर वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुई थी। वैसे ये वाली पतली सी ब्यूटीफुल नूर को किडनैप करने का दिल कर रहा है, शरारत आमेज लहजे में बोली। वो जिसके करीब से उठे अब कब्र की जानिब किया था, उसके चेहरे के निखरते रंग देखते पुरसुकून हो गया। बिलाश हुआ इस लड़की को जिंदगी की जानिब लाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा था। वो मुस्कुराते उसकी नज़रें सामने न होने के बावजूद खुद पर मरकूज पाते सुर्खी छुपाने की कोशिश में मुझे चेहरा झुका गई थी। मुझे ना बुरी बुरी वाइब्स आ रही हैं, आपने मुझे बस तस्बीह पकड़ा दे, मैं अल्लाह को याद कर लूँ। वो अपनी कैबिन पर दिल थामते उसे तैयार होते देख घबराए से लहजे में बोली थी। तस्बीह? आहन ने मुस्कुराहट दबाए उसके कदम उसकी जानिब बढ़ के जरा बढ़ाए थे। खुद को बस पुरसुकून रखा करो, कुछ नहीं सोचा करो। उसके ठंडे पड़ते हाथ थामते नीली टाई के नोट के साथ वो इसके पास था। आहन मुझे डर लग रहा है, आप आज नहीं जाए। वो अपनी तबीयत में खासा बोझलपन महसूस कर रही थी। हाथ मैं मम्मा के पास छोड़ दूँ? उसका हाथ थामते वो बिस्तर से उठाते बोला। आप एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते मेरे लिए? वो बड़ाई लहजे में बोली थी। मैं जल्दी आ जाऊँगा ना, परेशान क्यों हो रही हूँ, सब अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी डेट मंथ के लास्ट में है, अभी खुद को रिलैक्स रखो। वो कतरे नरमी से परेशानी ज़ाहिर करने लगा। आपको हो ना तो पता चले। वो हर बार की तरह नॉन स्टॉप ज़बान चल ही गई थी। रिया तुम कितना फजूल बोलती हो, आहन सोई थे झरझरी ले गया था। 1 मिनट। वो शीशे के करीब से गुजरती बुरी तरह चिल्लाई थी। क्या हो गया है? आहन ने घबराते से कंधे से थामे ही पूछा। मैं तब से आपके सामने ऐसी थी, और यहाँ से होते अपने बड़े सरापे पर खुली सी पर गुलाबी प्रिंटेड शर्ट ट्राउजर पर शाल कंधे पर झूलती मलकजी सी छुट्टियों में निकले बाल देखने लगी थी। अभी तुम खुद को डर महसूस कर रही थी और अब देखो। वो इसके संजीदा मामलात में भी बदलते तेवरों पर अच्छा खासा हैरान हो जाता था। मैं खासी बुरी लग रही हूँ ना? वो तशबीह ज़रा सी बुरी आंखें सुखेड़ गई थी। नहीं तो किसने कहा मेरी जान तो बहुत क्यूट लग रही है। अल्लाह अपने बंदे को इस झूठ पर माफ़ करना। उसके बराबर जाते दिल में बोले बहलाने वाला अंदाज अपना गया, वरना कोई भरम नहीं था वो रोने बैठ जाती। झूठ बोल रहे हैं ना, मैं जानती हूँ मैं अच्छी नहीं लग रही, बल्कि मोटी आंटी लग रही हूँ। पसीनो स्पिन उसका जोर इसी पर निकलना था। मैं तुम्हारा उंगलियां भी 5 मिनट में दुरुस्त कर देता हूँ, पर इससे दुश्मनी नहीं निकाला करो यार। उसके नाक पर लप रखते उसके बालों से छुट्टी बाल निकालने लगा। बैठो यहाँ। वो ड्रेसर की चेयर खिसकाते बिठा गया। आप लेट? वो बोलती कि वो चुप कर आ गया था। आज मुझे यकीन हो गया ये असली है। उसके उलझे बाल दुरुस्त करते हुए मुस्कुराते झुकते बालों पर लप रख गया था। वो शीशे से घूर के रह गई थी। हाँ ऐसे नहीं बनाते हैं, मेरे बाल खींच रहे हैं आप? उलझे बालों में जोर से कंघा फेरने से सर पर हाथ रख गई थी। 1 मिनट तुम चुप रहोगी? वो जब्त किए रह गई थी। उसके बालों को इसके पीछे खड़े जाने अब कैसे मरोड़े दे रहा था। आज मैं ठीक लग रही हूँ, रहने दे, आप लेट हो रहे हैं। रिया ने हार मान ली, लेकिन आहान के बाल बनाते हाथ नहीं रुक रहे थे। वो जानती थी जिद का हमारा शख्स नया अपनी जानिब से इजाद करने चुटिया का डिज़ाइन तो बना के छोड़ेगा। धन फोनी कहाँ है? उसके हाथ में थमा गई। देखो आप, उसके कंधे पर रख गया। इसको आप चुटिया कहते हैं? रिया सदमे से देखने लगी। जो उलट पलट के इसके बालों में मजीद उलझा गया था। रहने दे आप, मुझे ऐसे इतने ज़्यादा मेरे बाल उतार दिए हैं। वो खफकी भरी नज़रों से कंघे को बालों से भरा देखने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा, आज इसी से गुजारा करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कल अच्छी बनाऊंगा ना? वो मोहब्बत से बातें बोला।
شکریہ آہان، پر مجھے آپ کی پریکٹس کے چکروں میں گنجی نہیں ہونا۔ وہ آخری بال دیتے اس کے ڈارک کلون کی مہک محسوس کرتے بولی، جسے وہ اس پر بھی اسپرے کر گیا تھا۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑی پر نظریں ڈالے وہ ہوٹل کی سمت کا ایڈریس دیکھے خود برتن کی اتنی نگاہ میرر سے ڈالنے لگا۔ بالوں کو ہاتھوں سے درست کرتے ہوئے اس وقت آفس کے فارمل حلیے میں تھا۔ سیاہ تھری پیس میں وائٹ شرٹ، تراشیدہ شیپ، وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور سوبر لگ رہا تھا۔ بابا میں پہنچ گیا ہوں، نہیں آج پتہ چلا ہماری دوسری پارٹنر کی ایک لڑکی ہے۔ وہ صبح ملی ڈیٹیل دیکھنے لگا تھا۔ ایلیویٹر سے کانفرنس روم کا فاصلہ 1 منٹ کا تھا۔ میں اسے ایگری کرنے کی کوشش پوری کروں گا، اوکے بعد میں بات ہوتی ہے۔ وہ فون سائلنٹ پر لگا گیا۔ گلاس ڈور دھکیلے وہ اندر پڑا جہاں اندھیرے میں پروجیکٹر سلائیڈز آن تھی، مطلب وہ لیٹ تھا۔ سب نے ایک نظر ڈور کی جانب ڈالی، محض 1 سیکنڈ میں نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اگلے پل وہ سر ہلاتے خالی نشست کی جانب بڑھا۔ اس دوران وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کی زکیڑی سے دیکھے گئی ہلکی روشنی میں بھی اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر واضح سٹچز کے نشان دیکھتے وہ اپنی USB کلر سے نکالنے لگی۔ نیکسٹ اس نے پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہ اپنے پوائنٹس مائنڈ میں کلک کرتے سوچنے لگی۔ خاموشی میں ہیلز کی آواز سے مہتا اپنی چیئر کے نزدیک سے گزرتی۔ اس کے ایلیگنٹ پرفیوم کی مہک اسے اپنے قریب سے گزرتی وہ محسوس ہوئی تھی جب وہ سنجیدہ سی پروفیشنل انداز میں پروجیکٹر سے USB اٹیچ کرنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد وہ پروفٹ ایبل اور لاس ایبل چارٹ سلائیڈ پر شو ہوتے غور کرنے لگا۔ آئی ہیو اے کوسچن، وہ بات بیچ میں کاٹ گیا۔ یس، اس کی جانب نظریں کر گئی تھی۔ لاس اور پروفٹ ایکول ہونا چاہیے، پھر لاس خالی ڈیل کرنے والے کو کیوں ہو؟ ویسے تو پریزنٹیشن کا رول ہوتا ہے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرتے، کویسچننگ سیکشن ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، لیکن آپ شاید نئے ہیں اسی لیے یہ مصرعہ بہت کانشیس ہو گیا۔ ابھی سے لاس اور پروفٹ کے معاملے میں اینڈ تک دیکھ تو لیں، میں کلیئر کروں گی۔ وہ سنجیدہ سٹی کا جواب دے گئی تھی۔ مطلب پینچ گیا، تھوڑی عزت افزائی ہوئی تھی جسے وہ اپنے پریزنٹیشن میں بہتر طریقے سے سمجھا گئی تھی۔ وہ اپنے پریزنٹیشن مکمل کرتے سلائیڈ آن کرتے سامنے آئی۔ اینی کویسچن؟ وہ اونچی بولتے اسے ضرور متوجہ کر گئی تھی جبکہ وہ پینچ رہا۔ وہ دکھتے سر سے میں شدید فلو میں اس وقت مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی حرکت سے غازیان پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ بے ساختہ اسے آئرہ کی چند ماہ پہلے کی بات یاد آئی۔ وہ ریٹرن ریونج لیتا ہے اور وہ ہر بار ایسا ہی کرتا تھا۔ آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ بشریٰ کی آواز سے وہ لاؤنج کے کاؤچ پر نیم دراز سرخ آنکھیں کھول گئی۔ بنا دیں، بوائلڈ ایگ پی لوں گی میں ساتھ۔ اسے بتاتی اٹھتی کہ بشریٰ کی بات سے پلٹی۔ آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا، میں آپ کو یاد رہوں گی نا؟ وہ اس کے بیک گراؤنڈ کی چھان بین کر گئے۔ غازیہ نے اسے ہائر کر لیا تھا، حالانکہ اسٹڈی سٹارٹ ہونے کے بعد سے فل ڈے ٹائم وہ وہیں رہتی، کچن سے لے کر گھر کے کام بھی اس کی ذمہ داری میں تھے۔ لیکن میں کہاں جا رہی ہوں بشریٰ؟ میں یہی ہوں، پھر بلانے کی بات کا سوال ہی نہیں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالنے لگی۔ 8 بجے کالج جانا تھا۔ وہ روم میں تیاری کے لیے اٹھی تھی، لیکن غازیان صاحب تو میرے حساب کتاب کی بات کر رہے تھے۔ وہ اپنی حیرت کم کرتے بولی، تو وہ ویسے بھی ہر ماہ کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ آپ ناشتہ بنائیں، میرا جینا مرنا اسی گھر میں لکھا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بڑے ٹیشو باکس سے 3-4 ٹیشو لیتے مذاق میں بات اڑاتے روم کی جانب چل دی۔ لیکن یہ تشویش روم میں جاتے ڈریسر پر پڑی چابیوں کے نیچے آ کے وہ لفظ مزید بڑھ گئی۔ روم میں چاپ سے وہ جان گئی وہ ہے ہر بات مجھے کیوں آخر میں پتہ چلتی ہے۔ وہ واش روم میں جاتے دیکھ آواز میں سختی لائے وہ پوچھنے لگی، بتانے والا تھا رات میں تم سو گئے اور میں بھول گیا تھا۔ وہ کبرڈ سے کپڑے لیتے شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اپنی تیاری کرنے لگی تھی۔ غازیان اسے لیمن کلر کی کھدر کی پرنٹڈ شرٹ پر سفید لانگ کوٹ میں دیکھنے لگا۔ وہ سنجیدہ سی بک سمیٹتے اوور آل ہینگر سے نکالنے میں مصروف تھی۔ نور میری جیکٹ تو دینا۔ وہ ڈریسر کے سامنے بال بناتے دوران اسے مخاطب کرنے کو بولا۔ وہ خاموشی سے اس کی براؤن جیکٹ پکڑا گئی تھی۔ تمہیں فلو ہو گیا، میں بھول گیا، بہت نازک ہے میری بیوی۔ وہ اس کی سرخ ناک پڑتے دیکھنے وہ بات بڑھاتے جیکٹ سے دھمک گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ اسے کوئی فرمائش کر رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک جاتے پہنا گئی تھی۔ تمہیں کچھ دنوں کے لیے ریلیف مل جائے گا مجھ سے، ویسے بھی تم ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ وہ مسکرانے کی صحیح کرتے اس کے ہر آرائش سے آری نقش دیکھنے لگا۔ میری خواہشات کا احترام کرنے کا شکریہ۔ وہ ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہوتے اپنے الجھے بال برش کرنے لگی تھی۔ غصہ کس بات کا ہے نور؟ میری جاب کا حصہ ہے، تم بھی اس کے لیے تیار رہا کرو۔ اس کو بولتے اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا۔ حیرت اس بات کی ہے میرے گھر کی ملازمہ کو بھی پتہ ہوتا ہے، پر نور کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ وہ سفید ٹائل والی ریسٹ واچ پہنتے زہرا خند ہوئی تھی، تو اسے اس بات کا ہے پہلے ملازمہ کو بتایا۔
वो चिढ़ गई थी उसके इतने पुरसुकून होने से। बहरहाल नूर अपने दिल के कैफियत व चैन के हवाले से इस पर ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। रेली यू मिस मी बेबी, एतराफ़ कर लो आज। वो शूज़ पहनने लगा था, वो दांत पीस गई थी। कहाँ हुए ट्रांसफर में मुद्दे की जानिब आए थे। और मेरे जाने के दुख में पूरा लेटर नहीं पड़ा। वो मजाक में बात टाल के अनूर खामोशी से हैंड वॉश किए डाइनिंग पर चली गई थी। नाश्ता बेदिली से करते वो घर को देख रही थी। हालांकि कुछ दिन की बात है, बस काश कि तुम एक सब्जेक्ट में फेल ना होती तो हम साथ जाते। मेरी ज्वाइनिंग ज़रूरी है ना, तुम्हारा थर्ड ईयर स्टार्ट है और माइग्रेशन प्रोसेस के लिए तुम्हें वो सब्जेक्ट भी क्लियर करना होगा। वैसे तुमने मुझे खासा शर्मिंदा किया था फेल होकर। वो आखिरी बात में मुस्कुराहट रोके से समझाते बोला था। मैं लास्ट महीने में कैसे इतने सिलेबस की तैयारी कर सकती थी? बताओ, तुम आइंस्टाइन की औलाद नहीं थी। मैं शर्मिंदा होने के बजाय गुस्सा कर गई थी। मैं तुम्हारा रोना बहुत मिस करूंगा नूर, इस खुशी में आई नो राइटिंग। उसका चीज़ सैंडविच अपनी प्लेट में रखते बोला, वो जब्त किए थे। इस शख्स को इससे जुदाई पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सोच के रह गई थी। ये घर सरगोशी में निकली आवाज़ बहुत सो पी रही थी। अरे चलो कुछ ज़्यादा बना, इस घर में खूबसूरत सी उसके मुकाबले चेयर लाए हुए उसको देखने लगा था। वो जानता था इस घर को लेकर खासी अटैच हो गई है, जबकि वो शादी से लेकर अब तक अपना गुजरा हर लम्हा किसी फिल्म की तरह सोच रही थी। अगर कभी हमें कोई मसला आपकी मम्मा जैसा हो तो आप क्या करेंगे? वो दिल की हालत दबाए उसको चिढ़ाने वाले सवाल करने लगी। पता है मेरा दिल क्या दिल चाह रहा है तो मैं छत से नीचे फेंक दूँ। गाजिया ने चेयर मजीब करते आमने सामने कर ली थी। ये मेरा जवाब नहीं है, बताइए क्या करेंगे? वो बजित थी। अव्वल तो मैं हमदर्द न्याज़ी नहीं हूँ, और अगर कभी मजीद अगले आने वाले सालों में ऐसा हुआ तो नूर का सांस रुक गया। उसके नज़दीक होते उसके लॉन्ग फोन के कोट के बटन खोलने लगा था। वाली चांद है, मुझे वो सरस से उठती बटन बंद करते उसकी मजबूती से थाम गया था। सुनो अब पहले, मैं हमदर्द नियाज़ी की तरह अपने बच्चे इनकी पागल माँ के हर पास हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। लिहाजा मुझसे जुदा होते वक्त सोच समझ कर फैसला करना। वो सांस रोक गई। जिसके करीब होते अपनी बेइज्जती में कहीं बात से भी सुर्ख कर गया था। जारी है। तो ये बस कैसी लगी आपको एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।